guys, so the topic for today is adductor strain और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैथोमैकेनिक्स, अबाउट द ग्रेड, सिम्टम्स एंड द डायग्नोसिस ऑफ द adductor strain। तो अगर हम सबसे पहले adductor strain की बात करें तो वी शुड नो कि व्हाट आर द adductors ऑफ द हिप एंड व्हाट आर देयर ओरिजिन एंड इंसर्शन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द adductors ऑफ हिप। ठीक है, देयर आर 5 adductors। First one is pectineus, adductor brevis, adductor longus, adductor magnus and gracilis। ठीक है, तो अगर हम इनके ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो adductor brevis है, it originates from the inferior pubic ramus and it inserts onto the upper part of the linea aspera of the femur। okay? अब अगर हम adductor longus के ओरिजिन इंसर्शन की बात करते हैं तो adductor longus का जो ओरिजिन है it is from the superior pubic ramus and it inserts into the middle third part of the linea aspera। okay? अगर adductor magnus के origin and insertion की बात करते हैं तो the origin takes place from istiopubic ramus। ठीक है, ये पूरा यहाँ istium, यहाँ पर pubis, so this whole region is the attachment of adductor magnus। ठीक है, so the insertion is onto the whole linea aspera। जो ये पूरी linea aspera है इसके ऊपर इंसर्शन होता है adductor magnus का along with the adductor tubercle। ठीक है, and this is the adductor hiatus। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं gracilis की तो gracilis जो है इसका ओरिजिन होता है from the superior and the inferior pubic ramus and insertion takes place onto the pes anserine along with the sartorius and the semimembranosus। The last muscle of the adductor group is the pectineus। Pectineus का origin होता है from the pectineal line of the pubis and it inserts onto the pectineal line of the femur। okay? जो कि medial side में होती है like this। ठीक है, so this was about the origin and insertion of the muscles। so अब अगर हम adductor strain की बात करते हैं तो it is basically the rupturing of the tendon or the musculotendinous junction in the adductors group। ठीक है, तो it is the most prevalent disease in the saucer and ice hockey players। ठीक है, saucer and ice hockey players के अंदर we can find adductor strain mostly। ठीक है, it is the second most common in these games after the hamstrings। ठीक है, hamstring का strain जो होता है it is the most common and it accounts for 37% of the injuries and adductor strain in saucer players accounts for the 23% of the injuries। ठीक है, so we can see कि adductor strain is a very much common pathology found in the pathology or a injury found in the saucer and ice hockey players। okay? so अगर हम बात करते हैं adductors में से कौन सा ऐसा मसल है जो कि मोर प्रोन है तो दैट इज adductor longus। adductor longus is the most prone out of all these adductors muscle to the adductor strain। ठीक है, अब ऐसा क्यों? because it have a poor vascularization। ठीक है, first reason is because of poor vascularization the adductor longus tendon tends to be more prone to this injury। ठीक है, the second reason is the tendon to muscle ratio। जो adductor longus है उसका tendon जो है it is very much small as compared to the muscular belly। like tendon जो है it accounts for 37.9% and जो muscle है it accounts for 62.1%। तो हम देख सकते हैं कि the tendon to muscle ratio is very very small in case of adductor longus। so this is the main reason। अब भाई tendon छोटा है तो जो weight transmission के लिए हमें strength चाहिए होती है it will be less। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें कि pubic symphysis है तो और adductor longus का origin हो रहा है superior pubic ramus से, तो pubic symphysis will lie somewhat here, right? ऐसे है ना, तो जो adductor longus का टेंडन है ये वेट ट्रांसमिशन के बहुत करीब है
तो वेट ट्रांसमिशन जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट। अगर टेंडन का साइज छोटा होगा तो इट विल बी मोर प्रोन टू इंजरी, ठीक है। और तीसरा यही रीजन है कि वेट ट्रांसमिशन के वक्त द adductor longus is the muscle which is more prone to the weight like acceptance, ठीक है। adductor longus is the muscle जो कि सबसे ज्यादा वेट एक्सेप्टेंस करती है ड्यूरिंग दी वेट ट्रांसफर। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट सबसे पास adductor longus का अटैचमेंट है, तो adductor longus क्या करती है, इट टेक्स द वेट, तो दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इंजरी, ठीक है। So this was about the adductor longus, and the prevalence is 62 to 90% of the adductor strain injuries are found to be in adductor longus, ठीक है। So अब अगर हम बात करते हैं about the risk factors associated with the adductor injury, तो जो सबसे पहला risk factor है it is the overpronation और LLD, limb length disparity। तो ओवर प्रोनेशन कैसे अफेक्ट करेगा और या फिर कैसे कॉज कर सकता है अडक्टर स्ट्रेन। जैसे कि ओवर प्रोनेशन है तो देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, ठीक है। शॉर्टनिंग की वजह से इट रिजल्ट्स इन द अडक्टर कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारी पोजीशन रहती है फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन की, तो दिस रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, ठीक है। तो अगर शॉर्टनिंग है तो इट रिजल्ट्स इन अडक्टर कॉन्ट्रैक्चर। अडक्टर कॉन्ट्रैक्चर है तो इन केस ऑफ ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमेटिक सेटिंग है तो क्या होगा, अबडक्शन फोर्स लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लेग एंड इस तरीके से अबडक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, तो अब अडक्टर्स में स्पाज्म आया हुआ है, तो जो एक्सेंट्रिक लोड होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अडक्टर्स टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेंट्रिकली, या फिर एकदम से जो फोर्स एक्सेंट्रिकली लग रहा है उसको बेयर करना। तो दिस रिजल्ट्स इन अडक्टर स्ट्रेन, ठीक है। सो द फर्स्ट वन वाज ओवरप्रोनेशन। द सेकेंड फैक्टर इज द सडन एक्सेलरेशन या फिर सडन ट्रॉमा या फिर फोर्स, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हमने बात की सडन एक्सेलरेशन कैसे। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर है वो सॉसर खेल रहा है, या फिर इन केस ऑफ फुटबॉल ऑल्सो अगर है ना एक प्लेयर आता है एंड उसने लाइक ही पुशेस हिम फ्रॉम मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज इज फॉर और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है तो अबडक्शन फोर्स लगा, so this results in strong eccentric contraction of adductors, तो इस वजह से it can cause adductor strain, ठीक है। जो थर्ड चीज है या फिर जो थर्ड रिस्क फैक्टर है it is the decreased range of motion of the joint, ठीक है। पुअर स्ट्रेचिंग से भी अडक्टर स्ट्रेन कैन रिजल्ट। भाई अडक्टर की स्ट्रेचिंग ही नहीं की है और सीधा खेलने चले गए, so this can result in increased amount of eccentric loading, या फिर like stretching ही नहीं किए तो muscles are not that adapted। adductors are the muscle जो कि normally tightness में होती है, ठीक है। तो हमें कभी भी before playing we need to stretch the adductors, ठीक है। so this can also cause adductor strain and increased repetitive movements like abduction बार बार कर रहे हैं, so this can result in adductor strain। क्योंकि भाई फॉर एग्जाम्पल लाइक बार बार एक इंजरी हो रही है, इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं बट अबडक्टर फोर्स लग रहा है, सो दिस रिजल्ट्स इन माइक्रो इंजरीज, और वो माइक्रो इंजरीज मिला के इट रिजल्ट्स इन अ वेरी increased or like macro level का adductor strain and which can cause pain and tenderness and swelling, ओके। सो अब हम बात करते हैं अबाउट द पैथोमेकेनिक्स ऑफ अडक्टर स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अडक्टर स्ट्रेन को कॉज कर रही है, लाइक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अडक्टर मसल में दैट आर रिजल्टिंग इन अ अडक्टर स्ट्रेन, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। अडक्टर्स का जो अरेंजमेंट है
it is different from other muscles and it can result in increased chances of injury क्योंकि the fiber orientation is like this, ठीक है. So this results in easy tearing. अब भाई proper अगर abduction होता है तो fiber orientation is like this, so this results in easy tearing. Okay, arrangement of the muscle. The second is the fibrocartilaginous enthesis. एंथेसिस हम सबको पता है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द बोन एंड द, या तो कैप्सूल हो गया या फिर टेंडन हो गया या फिर लिगामेंट हो गया. द कनेक्शन थ्रू विच लिगामेंट, टेंडन और कैप्सूल कनेक्ट्स टू द बोन. सो अगर एंथेसिस फाइब्रोकार्टिलेजिनस है तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अडक्टर स्ट्रेन या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन. ओके, फाइब्रस सिंथेसिस होते हैं एक तो, और एक होते हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनस सिंथेसिस. तो जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस सिंथेसिस होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स. ठीक है, अगर हम बात करें इसके जोन्स की तो कंसिडर दिस एज अ टेंडन एंड दिस एज बोन. तो ये जो कनेक्शन है इनके बीच का, दिस इज द एंथेसिस. तो अगर हम सबसे पहले जोन की बात करते हैं तो इट इज द प्योर डेंस जोन. कौन सा जोन? इट इज प्योर डेंस जोन. इस जोन में क्या होता है? इट इज प्योरली लोकेटेड इनसाइड द टेंडन and it have only and only fibroblast comma made up of one type of collagen fibers. तो हमने क्या बात की कि इसका जो पहला जोन है, इट इज द प्योर डेंस जोन विच is present inside a tendon consisting of fibroblast and type 1 collagen fibers and it is vascular. ये जो मैंने वैस्कुलर बताया इसका सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ अभी, व्हाई आई टोल्ड अबाउट दिस. द जो सेकेंड जोन है, इट इज द अनकैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यूज. ठीक है, अनकैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू या फिर जोन. ठीक है, तो ये जोन क्या है? इट इज द एवैस्कुलर जोन. अब एवैस्कुलर जोन है तो मतलब हमें पता है इट इज मोर prone to injury, है ना. it is more prone to injury. अब मैं बताऊंगी why it is more prone to injury. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे about its content. तो इसके कोलेजन है टाइप 1, 2 and 3, जिसमें से भी जो टाइप 2 कोलेजन है इट इज मोस्टली फाउंड इन अनकैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू. अब हमें पता है भाई अनकैल्सिफाइड मतलब इट डू नॉट कंटेन्स एनी स्टिफ मटेरियल, लाइक मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज टाइप 2 जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इसको. ठीक है, अब जो अनकैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो जोन है, इसका क्या काम है? फोर्स डिसिसिपेशन. ठीक है, जो भी फोर्स एक मसल के या फिर मस्कुलो टेंडनस जंक्शन पे आएंगे, इट विल रिजल्ट इन लाइक मस्कुलो टेंडनस नहीं, आई मीन जो भी फोर्सेस टेंडन टू बोन ट्रांसफर होने होंगे, इट विल हेल्प इन फोर्स डिसिसिपेशन, मतलब फोर्स की स्प्रेडिंग को. अब ये कैसे? बिकॉज हमने बात की इलास्टिक है तो इट रिजल्ट्स इन कोलेजन फाइबर बेंडिंग. अब बेंडिंग से मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बेंडिंग, बेंडिंग से मतलब है चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर जिससे कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. तो अब भाई हमने इसका काम देख लिया कि इट इज acting as a force dissipator. तो अगर there are large amount of forces, so increased amount of injury होगी in this zone. ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई सेकेंड जोन की. अब जो थर्ड जोन है, इट इज द कैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जोन. अब कैल्सिफाइड नाम से पता पड़ रहा है इसका जो कंटेंट है, इट इज टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स. टाइप 10 आर ऑल्सो प्रेजेंट बट टाइप 1 इज इन मेजॉरिटी. ठीक है, तो मतलब ये प्रोवाइड करता है स्टिफनेस. अब मैं बता दूं
ये भी है एवैस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एवैस्कुलर स्ट्रक्चर होने का ये इसका एक बेनिफिट तो ये है कि इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, है ना, ये इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट करता है बिकॉज इट इज एवैस्कुलर, तो जो ब्लड ट्रांसमिशन है वो रुक गया, एंड इट इज टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, तो जो स्टिफनेस है इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, एंड दूसरी चीज ये है अगर इस जोन में इंजरी होती है तो इट रिजल्ट्स इन अवल्जन फ्रैक्चर्स। हम सबको पता है कि भाई अवल्जन फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रैक्चर्स जिसमें एक बोनी फ्रैगमेंट साथ में निकलता है, बट वी डोंट नो कि भाई अवल्जन फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होते हैं अगर कैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जोन है उसके अंदर इंजरी हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन अवल्जन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अब जो फोर्थ जोन है इट इज द सबकॉन्ड्रल बोन। सबकॉन्ड्रल बोन कौन सी होती है? सबकॉन्ड्रल बोन होती है जिसके अंदर कार्टिलेजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो बोन का पार्ट दैट इज जस्ट बीनीथ द कार्टिलेज और इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यूज होते हैं। सो दिस इज द फोर्थ जोन एंड विच एक्ट्स एज अ मेजर कनेक्शन बिटवीन the tendon and the bone, okay। and one more thing is जो ये वाली जोन है ना, सेकेंड जोन एंड दी थर्ड जोन, मतलब अनकैल्सिफाइड और कैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जोन, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग लाइन दिखेगी। दिस लाइन इज कॉल्ड एज टाइड मार्क। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट टोल्ड यू एक्स्ट्रा। सो जो अडक्टर स्ट्रेन में आई नीड टू टेल कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंथेसिस जो है इट इज डिनोटेड एज अ मेन कॉज और द मेन रीजन फॉर द अडक्टर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस जोन दैट इज अनकैल्सिफाइड फाइब्रोकार्टिलेजिनस जोन विच एक्ट एज अ फोर्स डिसिपेटर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी कि भाई फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो इंथेसिस है वो कैसे अडक्टर स्ट्रेन कॉज करता है। अब अगर हम बात करते हैं व्हाई द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडक्टर स्ट्रेन, तो इट इज बिकॉज ऑफ पुअर वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। पुअर वेस्कुलराइजेशन जो है इट इज दी हम देख रहे हैं कि भाई बेसिक रीजन है व्हाई दी अडक्टर स्ट्रेन या फिर कोई सा भी स्ट्रेन इज कॉज, ठीक है। तो पुअर वेस्कुलराइजेशन में बता देती हूँ अडक्टर लॉन्गस एंड अडक्टर ब्रेविस के फुल टेंडन में होता है। इट इज इन फाइब्रोकार्टिलेजिनस एंथेसिस ऑफ द अडक्टर मसल एंड द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शंस। एक और स्पेशलिटी मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन की दैट इज इट हैव इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ नोसिसेप्टर्स। अब इंक्रीज अमाउंट ऑफ नोसिसेप्टर्स है तो आप गेस करो क्या होगा, and I'll be telling you in the video, okay। तो मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन का एक मैंने बताया कि पुअर वेस्कुलराइजेशन है, that is why adductor strain is commonly observed at this side। the second reason is because जो sarcolemma होता है it is not that elastic, okay। sarcolemma at the musculotendinous junction is not elastic। तो हम बात करते हैं, हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। सो हम देखते हैं दिस इज टेंडन एंड दिस इज मसल। टेंडन में क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर्स, तीनों साइड्स। तीनों साइड्स क्या करेंगे? दे फॉर्म द कोलेजन फाइबर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द sarcolemma, ओके। अब sarcolemma is this, ये sarcolemma Z बैंड हो गया, ओके। सो जो हमारा मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन है दिस वन इज अ मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, ठीक है। तो अब
ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सार्कोलेमा। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका जो कॉन्टैक्ट है, जो इनकी बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो जो मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन की बॉन्ड को इंक्रीज करने के लिए द कोलेजन फाइबर्स आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और जो दूसरी चीज होती है दैट इज द इंटरडिजिटेशंस, है ना। कहाँ है इसमें इंटरडिजिटेशंस? दीज आर द इंटरडिजिटेशंस। इससे क्या हो रहा है, इनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है, विच इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो कि प्रिवेंट करती है टियरिंग या फिर सेपरेशन ऑफ अ मसल फ्रॉम अ टेंडन ड्यूरिंग अ एप्लीकेशन ऑफ एक्सेंट्रिक लोड, बट टिल अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि उसी के बाद तो अडक्टर स्ट्रेन हो रहा है या फिर कोई सा भी टाइप ऑफ स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक ग्लिम्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। तो मैं बता रही थी कि सार्कोलेमा इज नॉट इलास्टिक एट द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। सार्कोलेमा यहाँ जितना इलास्टिक होता है, इट इज नॉट दैट इलास्टिक एट मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। सो अगर इंक्रीज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे तो वो या तो इट विल नॉट अलाउ द फोर्सेस टू ट्रांसफर, और क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट के फोर्सेस लग रहे हैं तो इट जस्ट रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग एट द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, ठीक है। एंड जो थर्ड रीजन है, इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, जो कि कहती है कि अगर मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन पे 20% तक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि 20% हम उसमें डिफॉर्मेशन करते हैं, तो द स्ट्रेस विल बी 40 किलो पास्कल्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, है ना। 40 किलो पास्कल्स एंड दिस इसका मतलब अगर हम 20% अमाउंट ऑफ जो नॉर्मल लेंथ है उसका डिफॉर्मेशन करते हैं तो इट विल ओनली कॉज अ चेंज ऑफ 40 किलो पास्कल स्ट्रेस, या फिर इट विल इंक्रीज 40 किलो पास्कल स्ट्रेस ऑन दी मस्कुलर जंक्शंस, ओके, मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। बट अगर हम 20% से ज्यादा लेंथ में चेंज लाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन स्टीप इंक्रीज इन दी फोर्सेस, ठीक है। मतलब it results in increased deformation, it results in increased stresses over the muscle causing its injury, ठीक है। So the stress strain curve of the musculotendinous junction says कि musculotendinous junctions are more compliant under 20% of deformation, ठीक है। जो टेंडनस एरिया होता है ना, दैट इज नॉट एट ऑल कंप्लायंट। लाइक अगर हमने थोड़ा भी डिफॉर्मेशन किया तो it results in increased stress over the other regions of tendon. But musculotendinous junction की एक benefit तो ये है, but after 20%, क्योंकि यहाँ पे there are muscular structures, है ना, इलास्टिक होते हैं, तो अगर उनको उनकी लेंथ से ज़्यादा हमने पुल दिया या फिर फोर्स जनरेट किया तो दे रिजल्ट इन tearing, okay. So this was why कि musculotendinous junction is more prone to strains. अब हम बात करेंगे about the mechanism of eccentric injury। कहते हैं the mechanism of eccentric injury, ठीक है। अब कैसे eccentric injury होती है, तो सबसे पहले अगर eccentric contraction होता है तो it results in sarcolemmal heterogeneity। sarcolemmal heterogeneity का मतलब क्या होता है? It means the difference of length of the sarcolemma। अभी हमने बात की थी कि सार्कोलेमा जो है इट विल लाइक इट एक्सपैंड्स, एंड हमें पता भी है कि सार्कोलेमा जो है इट एक्सपैंड्स या फिर एक्टिन एंड मायोसिन के बीच का जो कॉन्टैक्ट है इट डिक्रीजेस एज द मसल लेंथनिंग टेक्स प्लेस। तो क्या होता है, वाइल मसल लेंथनिंग, जो मसल का पेरिफेरल पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मसल, तो इसका जो पेरिफेरल पार्ट है यहाँ के सार्कोम में ज्यादा लेंथनिंग होती है एज कंपेयर टू द सेंट्रल वंस, ठीक है। तो देयर विल बी अ sarcolemmal heterogeneity बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द sarcomere, ठीक है। तो ये क्या करता है, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स,
मतलब भाई अभी हमने बात की कि एक लिमिट के बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन मसल, दैट इज वाई हमने पता है कि क्रीप नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर सार्कोलेमल हेट्रोजेनेसिटी होती है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद इट रिजल्ट्स इन द लूजिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट कॉन्टैक्ट। थिक एंड थिन फिलामेंट कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन आर द थिक एंड थिन फिलामेंट, उनका कॉन्टैक्ट जो होता है दैट गेट्स लूजनड अप, मतलब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से हट जाते हैं। हमें पता है चाहे वो रिलैक्स स्टेट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट हो, एक्टिन एंड मायोसिन आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, तो इनका कॉन्टैक्ट जो होता है इट इज रिमूव्ड। तो अगर ये रिमूव होता है तो क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन ब्लड वेसल इंजरी। हम ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन केसेस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। ब्लड वेसल इंजरी हुई तो क्या हुआ? केराटिन एंड काइनेज का इन्फ्लक्स बढ़ा। केराटिन एंड काइनेज का इन्फ्लक्स बढ़ने की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स भी बढ़ा। कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ने की वजह से जो कैल्शियम मीडिएटेड मायोफिब्रिलर एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स थे, मायोफिब्रिलर एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स जो थे दे गेट ब्रोकन डाउन। अब भाई ये ब्रेक हो गए तो फिर क्या होगा? ना मायोफिब्रिलर फॉर्मेशन होगा ना साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन होगा, मतलब ना थिक फिलामेंट फॉर्म हुए ना थिन फिलामेंट फॉर्म हुए और ना मायोफिब्रिल्स का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द muscular region or the musculotendinous region, ठीक है। So this is the mechanism for the eccentric injury. So this was all about the basic idea of the adductor strain. अब हम बात करेंगे what are the grades and what are the symptoms and diagnosis for the adductor strain. तो grades are 1, 2 and 3 grades. हम सबको पता है 1 is the mild injury वाला grade जिसके अंदर normal pain, swelling and tenderness रहता है. There is नॉट मच इंजरी टू दी टेंडन या फिर मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। सेकेंड वाले में देर इज एन इंजरी टू दी मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, मतलब मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन इज इन्वॉल्व। एंड थर्ड ग्रेड में देर इज अ डिसरप्शन ऑफ द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, है ना। एंड ये भी होता है कि मसल टियर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो दिस वॉज अ बेसिक ग्लिम्स अबाउट द ग्रेड्स। एंड अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में वी कैन ऑब्जर्व अ लॉट्स ऑफ पेन, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ओवर द मीडियल रीजन ऑफ द थाई, ठीक है। अब मीडियल रीजन तो ऑब्वियसली बिकॉज अडक्टर्स और ओवर द मीडियल रीजन, ठीक है। अब जो पेन है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला था कि देयर आर इंक्रीज्ड नोसिसेप्टर्स एट द मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन। दिस इज द रीजन कि सबसे ज़्यादा पेन क्यों होता है इन केस ऑफ अडक्टर स्ट्रेन, ठीक है। और जो ये पेन है इट इज इंक्रीज्ड इन मॉर्निंग, increase during any kind of activity, and अगर overuse of adductors, pain is increased during all these three conditions, ठीक है। जो second symptom है that is the popping और snapping sound, ठीक है। snapping एक कड़क जैसी साउंड आती है और ड्यूरिंग द इंजरी, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन द साइन ऑफ द इंजरी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द अडक्टर स्ट्रेन, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व अ माइल्ड अमाउंट ऑफ हैमरेज और ब्लीडिंग अगर ग्रेड 3 इंजरी है तो, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द अडक्टर स्ट्रेन, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, तो उसमें एक्सरेज एंड जो पोजीशन होगी दैट इज द फ्रॉग पोज एंटेरोपोस्टीरियर व्यू,
फ्रॉग पोज एंटेरो-पोस्टीरियर व्यू हमने इसलिए लिया होता है बिकॉज इट गिव्स अ बेटर एक्सपोजर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अडक्टर्स. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था कि भाई उसका प्यूबिस ओरिजिन है एंड इंसर्ट्स ऑनटू द फीमर. तो फ्रॉग पोज जो होता है इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना. तो इट गिव्स अ बेटर एक्सपोजर ऑफ द ओरिजिन. सो दिस इज वाई फ्रॉग पोज इज प्रेफर्ड. ठीक है, तो सेकेंड डायग्नोस्टिक टूल है इज MRI. अब MRI इज मेनली यूज फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि भाई ग्रोइंग पेन के और भी कारण हो सकते हैं. ऑस्टाइटिस प्यूबिस, एपोफाइजियल अवर्जन इंजरीज, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. बट द MRI इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द मसल एडिमा, या फिर कोई मसल में इंजरी हो गई, हैमरेज हो गया. इंटरनल हैमरेज के केसेस में भी हम MRI से डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, so MRI can also be used. And the last diagnostic tool is musculoskeletal ultrasound. Musculoskeletal ultrasound is the very brilliant tool जिससे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन. हालांकि इंडिया में वी डोंट यूज दिस मच, बट वी कैन यूज इट टू डायग्नोस द अडक्टर स्ट्रेन बिकॉज इट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी. मतलब कि भाई डेप्थ क्या थी, है ना, और सरफेस एरिया कितना था. एंड हम इसको ट्रीटमेंट के दौरान फॉर चेकिंग दी प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल द डायग्नोस्टिक टूल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ द अडक्टर स्ट्रेन. सो this was all about today's video and I hope you all liked it. Thank you so much for watching.